Good evening. Good evening, all of you, and welcome to Now, today's session. Namaskar. It was quite a long time that we have not interacted for the because I was on tour to some other places. Please switch off your microphones or mute. So I have earlier I have forwarded the links of the assignments which were not working properly. There were some technical problems in that. So I have restructured them into a PDF format. And yesterday I have forwarded the all three assignments. I hope you have seen the assignments, everyone. Hello, sir. hello. Yes, Yeah, sir. Yes, आप sir. मैंने yes Yes, sir. You have sir. You seen are the audible. assignment. So uh, you what you need to take is you take A4 size paper, A4 size paper, and whether it is plain paper or a ruled paper, it is left to you. With the availability, whatever the stationery belong with you, you can use them. You take these white sheets or a lined sheets, write your name and the enrollment number and the assignment, for example, OVA1 or OVA2 or OTH003, and solve those assignments in these white papers. Okay, you are going to solve these assignments in these white papers and use your smartphone to scan them and add them in the form of PDF and mail to cpatha@igno.ac.in. Okay, on or before 10th December 2021. Okay, you have now ample time. We have some nearly 12 days of time I have given you because of the non-working of that Google form assignments which I have forwarded earlier. Okay, so you need to answer all the questions in the assignments. There is no choice for you. There is no choice because just because it is assignment, it is not the term and examination. In term and examinations, I think you can have some kind of a choice. You will be given some 7 to 8 questions. You may be asked to answer five or so. But here in assignments, you are supposed to read all the study materials available with you, and then you answer these assignment questions. The assignment questions are based on the study material which is provided to you. If study material is not reached to you by post, you can download them from eGnan कोर्स वेबसाइट eGnan कोर्स वेबसाइट का मैंने एड्रेस पहले ही ग्रुप में आप लोगों को फॉरवर्ड किया था. तो आप उसमें जाएंगे और CPA THA जैसे आप टाइप करेंगे तो CPA THA का सारा स्टडी मटेरियल आपको मिल जाएगा. जैसे OVA1 है, OVA2 है, OTS002 है, ये पूरा मटेरियल वहाँ पे आपको मिल जाएगा. वहाँ से डाउनलोड कीजिए, पढ़ लीजिए और इन असाइनमेंट्स को आंसर कीजिए. और one more problem is that in one assignment there is a problem of date में कुछ typing error आ गया है. Don't go with that because that is a old date which has been typewritten. Now you need to submit all these assignments through mail uh, on or before 10th December 2021. Okay, and please send these all three assignments in one mail, in only one mail. Don't send each and OVA1 को एक मेल, OVA2 का एक मेल, OVA3 का OTH003 का एक मेल मत भेजिए. क्योंकि मुझे जब मैं रिसीव करता हूं तो आपका जो डाटा बनाने में और आपके जो असाइनमेंट्स चेक करने में मुझे दिक्कत होती है. तो अगर वो एक सिंगल मेल में होता है तो मुझे ओपन करूंगा तो वो तीन आपके असाइनमेंट्स उसी मेल में दिखेंगे. तो उसको डाउनलोड करके फिर मैं पढ़ूंगा, फिर उसका करेक्शन करूंगा, उसकी मार्किंग होगी, तो मेरे लिए आसान होगा. You are understanding? You need to send all three assignments in one single mail. Okay, after scanning them. अपना कैम्प स्कैनर होगा आपके पास, नहीं तो अबाउट स्कैनर. आजकल सारे स्मार्टफोन्स में यू आर हैविंग द फैसिलिटी ऑफ स्कैनर. स्कैनिंग का एप्स बहुत सारे मिल जाएंगे आपको, उसको कौन सा भी डाउनलोड कर लीजिए और स्कैन देम एंड सेंड इट टू मी. ओके, अभी आप लोगों को असाइनमेंट्स के बारे में अगर कुछ अभी भी कुछ इश्यूज है तो आप बताइए, तो फिर हम आगे बढ़ते हैं. एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग असाइनमेंट्स?
या और समझ में आ गया क्या करना है, या फिर कोई और क्वेश्चन भी रहता है अभी? सर, हाँ, प्रवीण हियर। क्या बोलिए। सर, मैं ये बोल रहा था कि ये क्वेश्चन पेपर जो है वो भी उसके साथ अटैच करना करके स्कैन करेंगे कि डायरेक्ट आंसर ही लिखेंगे? नहीं नहीं, आप उसमें सेक्शन 1 सेक्शन 2 है ना, सेक्शन का नंबर जी जी। डालिए। क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन लिखना चाहेंगे तो लिखिए क्वेश्चन, नहीं तो क्वेश्चन नंबर हम्म। डाल के उसका आंसर कर दीजिए बस। वो क्वेश्चन पूरा फिर कैसे स्कैन करेंगे, कोई जरूरत नहीं है। वो असाइनमेंट्स तो जी मेरे सर। पास है ना। हाँ सर। आप कौन से क्वेश्चन को आंसर कर रहे हैं ये तो पता लगना चाहिए ना, यस इतना तो सर, यस ध्यान सर। रखिए। इफ इट इज अ सेक्शन ए, यू आर आंसरिंग हम्म द क्वेश्चन नंबर 1, यू जस्ट सेक्शन ए क्वेश्चन नंबर 1 आंसर करके आंसर कीजिए और मुझे भेज दीजिए, ठीक है ना। ओके सर। जी सर। एनी अदर क्वेश्चंस? वैसे उसमें इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, जैसे आप असाइनमेंट खोलेंगे तो आपको सारे इंस्ट्रक्शंस मिल जाएंगे। सिंस वी आर नॉट रिसीविंग द असाइनमेंट ऑफलाइन, ऑफलाइन पहले क्या होता था, असाइनमेंट पूरा लिखते थे, स्टडी सेंटर जाके वहाँ जमा होता था, अब वो सिस्टम नहीं है। आप असाइनमेंट अपने खुद के हैंड राइटिंग में लिखेंगे, उसको स्कैन करेंगे और उसको पीडीएफ बनाएंगे और मुझे मेल कर देंगे, बस यही सिस्टम है, ठीक है ना। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं होगी? या एनी अदर क्वेश्चंस रिगार्डिंग असाइनमेंट्स? सर आपने सर लिंक्स भी सेंड किए और पीडीएफ भी सेंड किए, वो दोनों अलग हैं क्या? हाँ अलग है, इसीलिए वो लिंक्स के बारे में भूल जाओ। अभी जो मैंने पीडीएफ भेजा है उन्हीं को सॉल्व करके भेजना है, ठीक है ना। एक लिंक खुल रहा है, एक लिंक नहीं खुल रहा है, तो वो लिंक्स के बारे में भूल जाइए अभी। वो उसको यू जस्ट पुट ऑफ दोज असाइनमेंट्स, द 3 असाइनमेंट्स विच आई हैव सेंड यस्टरडे इन पीडीएफ फॉर्मेट, उसी को आंसर कीजिए, ठीक है। ओके सर, श्योर। हाँ, या सर, एनी क्वेरीज? हाँ क्वेश्चन का आंसर हिंदी में भी लिख सकते हैं? हाँ, हाँ क्वेश्चन हिंदी का में लिख आंसर। सकते हैं, इंग्लिश में लिख सकते हैं, और कोई और लैंग्वेज में नहीं लिखेंगे, क्योंकि वो से लिखोगे जी तो जी जी। उसका असेसमेंट नहीं होगा। यू विल बी अलाउड टू राइट जी ओनली इन सर। इंग्लिश और इन हिंदी, just because ओके the सर। medium of instruction is English only, but I am giving you a chance that you can also write it in Hindi, okay? हिंदी में भी लिख सकते जी हैं, सर। कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसका लास्ट डेट 10 दिसंबर के पहले पहले आप करके मुझे मेल कर दीजिए। उसके बाद जो भी मेल, उसके बाद जो भी असाइनमेंट आएगा उसका इवेल्युएशन नहीं होगा, ठीक है ना। अभी बहुत टाइम दे दिया मैंने, तो अभी आपके पास अच्छा खासा टाइम है, और उसके बाद में ब्लेम गेम नहीं चलेगा कि मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला, या फिर मेरा मेल नहीं चल रहा है, मेरे पास स्मार्टफोन नहीं है, मेरे पास इंटरनेट नहीं है। ये पूरा बहाना नहीं चलेगा, क्योंकि आपके पास टाइम है। तो डोंट वेट फॉर द लास्ट डेट, दैट इज व्हाट आई एम सपो आई मीन आई वुड लाइक टू टेल यू, बिकॉज लास्ट डेट के लिए इंतजार मत कीजिए। अगर आपका काम जल्दी हो जाता है तो तीनों असाइनमेंट को स्कैन करके तुरंत cpatha@igno.ac.in पे आप मेल कर दीजिए। ये मेल आईडी मैं आपको ग्रुप में भी फॉरवर्ड करता हूँ, ठीक है ना, आपकी सुविधा के लिए। और बाद में लास्ट डेट तक वेट करिए, कोई और बोलेगा कि हमारे पास और भी स्टूडेंट्स है, सर मैं कश्मीर से हूँ, मैं कन्याकुमारी में हूँ, मेरे पास इंटरनेट नहीं चलता है, यहाँ पे वो होता है, ये नहीं चलेगा। फिर उसके बाद मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा, या फिर शायद आप भी कुछ नहीं कर पाओगे। तो हम अच्छी तरह से इस टाइम का सदुपयोग करेंगे और उसको निभाएंगे, ठीक है। अगर असाइनमेंट्स के बारे में कोई चर्चा हो तो बताइए, नहीं तो फिर हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अ, जैसे मैंने आप लोगों को कुछ प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेस भी बताए थे, और आज मैं एक तीसरा वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड करूंगा, उसमें कुछ और भी वॉइस स्पीचेस के एक्सरसाइजेस है। उसे देखते हुए आप थोड़ा प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि ये exercises will be an add-on exercises to the exercises which I was talking about them in earlier classes, ठीक है। एंड हम थोड़ा और बढ़ते हैं कि हमने एक्शंस के बारे में आपको बताया था, सिंपल एक्शंस को मैंने बोला था कि
सिंपल एक्शंस आप कैसे करेंगे। और मैंने ये भी बोला था कि आपको उसको एक कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करेंगे, जैसे ओपनिंग ऑफ द डोर, पीपिंग थ्रू विंडो, या स्लीपिंग ऑन द ग्राउंड, digging something on the ground, searching for something, and entering into a unknown room और waiting for someone। ऐसे मैंने कुछ आप लोगों को एक्सरसाइजेस दिया था। आज मैं उसका एक्सटेंशन करता हूँ। तो उसको हर एक्सरसाइज को हम 3 छोटे छोटे हिस्सों में बांटेंगे। इसका मतलब एक सिंपल एक्शन को हम लोग 3 हिस्सों में, जैसे स्टार्टिंग पॉइंट होगा, एक मिडिल पॉइंट होगा, एक एंड पॉइंट होगा। इन चीज़ों को हम करने की कोशिश करेंगे। इसका मतलब ये है कि फॉर सपोज यू आर पीपिंग थ्रू विंडो, एक खिड़की खिड़की से आप एक झांक रहे हैं, ये एक्शन है आप। तो इसमें स्टार्टिंग में क्या होगा, मिडिल ऑफ द एक्शन क्या होगा, और एंड पॉइंट में क्या होगा। तो एक कंप्लीट एक्सरसाइज, एक कंप्लीटनेस ऑफ एक्शन, ये एक्शन को पूरा करने के लिए, एक पूर्णता की तरफ ले जाने के लिए, एक मीनिंगफुल एंड देने के लिए। सपोज यू आर taking a paper and tearing it. Okay, this is only the action. Suppose I am saying that this is the action you are not supposed to do. First of all, you are taking the paper and looking it, and from where you want to tear it, you are deciding it and tearing it and taking all the pieces and throwing it. These are the three starting, middle, and end, which gives you a meaningful to the this kind of an exercise. Okay. Similarly, for every exercise, you think about these three, like starting point, middle point, and end point. Like a story, story में क्या होगा? There will be a starting point, there will be a middle point, there will be an end point. If you see a film also, or if you see a scene, तो ये छोटा सा सीन भी लेंगे। सीन का स्टार्टिंग पॉइंट होता है, एक मिडिल पॉइंट होता है, एक एंड पॉइंट होता है। दो लोग बात कर रहे हैं, दिस इज अ स्टार्टिंग पॉइंट, बीच में झगड़ा हो जाता है, दैट इज द मिडिल पॉइंट, एंड लास्ट में एक क्लाइमैक्स आती है जिसमें कोई रोता है या एक दूसरे से मारपीट होती है, और एक हार जाता है या फिर एक जीत जाता है, या फिर वो एक हैप्पी एंडिंग होती है। इस तरह से ये सीन कल्मिनेट होता है या फिल्म भी कंप्लीट होता है। तो इसीलिए हम यहीं से उसको प्रैक्टिस करेंगे। दिस इज वी व्हाट वी कॉल इट एज पंचिंग ऑफ द एक्शन, पंच करना, है ना, 1 2 3। ओके। एंड इस सारे एक्शंस, हमने जो 10 एक्शंस आपको दिए हैं, प्रोवाइड किए हैं, उन सारे 10 एक्शंस को आप इसी लाइन में सोचेंगे कि इसमें स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा, मिडिल पॉइंट क्या होगा, और एंड पॉइंट क्या होगा। ठीक है। अभी मैंने आपको जो समझाया उसमें कोई इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी। ओके। पंचिंग ऑफ द सर वो एक्शन। हाँ 10 पॉइंट सर लकी। शेयर कर दीजिए ना सर, कौन से थे? क्या 10 पॉइंट सर आप बता रहे हो ना सर? एंड पॉइंट मैं नहीं बता रहा हूं आपको, एंड पॉइंट आप डिसाइड करेंगे। एक्शन मैंने आपको ओके बताया, आप एंड जी। पॉइंट कैसे उसको ले जाना चाहेंगे ये आप बताएंगे। मैं सिर्फ एक एग्जांपल आपको बताया था कि कैसे हो सकता है। आप क्या सोचेंगे ये मैंने, मेरा काम नहीं है, मैं नहीं सोचूंगा, या फिर मैं क्या सोचूंगा वो जरूरी नहीं कि आप भी वही सोचे, है ना। जैसे मैंने खिड़की को झांकते हुए, आप किस वजह से खिड़की में से झांक रहे हैं मुझे पता नहीं है, तो मैं एंड एक्शन कैसे बता सकता हूँ। तो आप डिसाइड करेंगे कि यू वांट टू सी सम गर्ल moving, making an entry and exit at the same time. Let us say every morning, as a beautiful girl is going and taking an exit, going to office or a college. That is the time you know that you are coming to a window and you want to see her, and you just planning that she doesn't know, आप उसको बता भी नहीं होना चाहिए कि आप उसको देख रहे हैं। इतना सारा एक्शन है आपके पास, तो आप उस खिड़की से झांक रहे हैं और आपने उनको देख लिया, तो सडनली उसने टर्न किया तो आप झुक रहे हैं। कुछ भी हो सकता है इसमें। एक एक छोटा सा एक्शन है, एक छोटा सा सस्पेंस है, और उसको आप 3 स्टेजेस में बांट रहे हैं। स्टार्टिंग में क्या होगा, मिडिल में क्या होगा, एंड में क्या होगा। या दूसरी बात, सडनली देर इज ए साउंड आउटसाइड एंड यू आर जस्ट पीपिंग थ्रू द विंडो एंड you realize that there is something happened, maybe an accident or a fire or something like that, and you want to rush, or you don't want to get into that kind of an involvement, and you are relaxing. That means anything. So आप क्या उसको डिसाइड करेंगे, आप उस चीजों को पहले ही चॉक डाउन कर लीजिए। अगर आप पेपर और पेन से करना है तो कर लीजिए, उसको प्रैक्टिस कर लीजिए। देन यू पंच दो एक्शंस इनटू 3 पार्ट्स, स्टार्टिंग पॉइंट, मिडिल पॉइंट, and end point of the action. Let us say I am saying that
टेकिंग ए कप ऑफ टी, ड्रिंकिंग ए कप ऑफ टी, उसमें स्टार्टिंग में क्या होगा, मिडिल में क्या होगा, एंड में क्या होगा? फर्स्ट में यू मे बी पिकिंग अप द कप, यू आर जस्ट टेस्टिंग इट, whether it is good or bad. If it is good, you want to continue. If it is bad, you don't want to continue. And if you don't want to continue, how you are going to put up that cup? And if you want to continue, how you are going to react after drinking entire tea? How you are going to, keep that cup? It depends on the taste of the tea, all that. Then you just keeping down. So these are the three actions which can be happen. In every action, there can be a three kinds of a punching can happen. So you have to think about that. You have to fix that. किस कॉन्टेक्स्ट में, किस संदर्भ में आप इस एक्शंस को कर रहे हो, उसी हिसाब से एक स्टार्टिंग पॉइंट, एक कहानी की शुरुआत, एक एक्शन की शुरुआत, एक्शन को मिडिल तक ले जाएंगे और उसको एंड करेंगे। ठीक है ना? इस तरह से आप सोचिए, उस तरह से आप प्रैक्टिस कीजिए। ऑल ऑफ ए सडन एक्शन शुड नॉट एंड, दैट इज द मेन आइडिया ऑफ डूइंग दीज एक्सरसाइजेस। ओके, अभी कोई डाउट है तो बताओ, नहीं तो फिर हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे। राइट। एंड अभी जो मैंने एक लाइन आपको दिया था, सेशु वाला लाइन, सेशु आपको याद होगा, बहुत दिन पहले हमने एक सेशु का लाइन आपको दिया था, मेरा नाम सेशु है, पूरा नाम आदि शेषु, ऐसा कुछ लाइन मैंने आपको दिया था। इसमें फिर Yes, हम sir. हाँ, इस लाइन को हम डिफरेंटली कैसे प्रैक्टिस करेंगे? इफ आई एम सेइंग दैट दिस शेषु लाइन, इफ यू आर डूइंग विथ लाफ्टर, हंसते हंसते बोलेंगे, सारा लाइन हंसी हंसी मजाक में बोलेंगे। एंड दूसरा, आप किसी को थ्रेटनिंग करते हुए बोलेंगे, है ना, थ्रेटनिंग, है ना, किसी को डरा रहे हो, हाँ। और दूसरा, यू आर वेरी पैथेटिक, यू नो, एक ट्रैजिक मूड में अगर आप बोल रहे हो, ठीक है। और चौथा हो सकता है कि आप डरे हुए हैं, आप किसी को डरा रहे हैं, ये एक तरीका है। आप डरे हुए हैं, उस टाइम में आप किसी ने पूछ लिया तुम्हारा नाम क्या है, तो यू आर वेरी मच अफ्रेड कि क्या बोले। देन यू आर सेइंग, सर मेरा नाम शेषु है, पूरा नाम कैसे आप बोलेंगे, ये आपका प्रॉब्लम है, आप उसको प्रैक्टिस करेंगे। और रूल ये है कि आप इस लाइंस में कुछ भी एडिट नहीं करेंगे, कुछ भी ऐड नहीं करेंगे, उसी लाइन को बोलेंगे, ठीक है। और ये हो गया। और नाजल साउंड में से भी अगर आप बोलेंगे तो कैसा रहेगा? इफ यू आर स्पीकिंग थ्रू योर नोज, मेरा नाम शेषु है, मतलब उसका जो बोलने का तरीका है, उससे ही उसकी मीनिंग भी बदल जाती है ना। एक तो लाफ्टर हो गया, एक थ्रेटनिंग हो गया, एक पैथेटिक हो गया, नाजल सर हो गया। मतलब डिफरेंट मूड में बोलना है। हाँ, यही तो मैं बोल रहा हूँ आपको, जी। डिफरेंट मूड, एंड दैट मूड विल बी सिंगल मूड। एक मूड से दूसरे मूड को स्विच मत करना, हंसते हंसते रोना, ओके रोते रोते हंसना, हाँ, ऐसा नहीं। जी। कंटिन्यू वन सिंगल एस्पेक्ट, ओके। एंड यू आर जेलस एंड यू आर सेइंग दीज लाइंस, जोवियल है, मजाकी में बोल रहे हैं, और किसी को हैकिल करने के लिए, किसी को चिढ़ाते हुए आप बोल रहे हैं, तो कैसे बोलेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 kinds of situations I have already told you. If you want, I will type these in the group. You try those lines, हाँ okay? सर। इसको यस रिकॉर्ड सर। कीजिए जी और सर। मुझे ऑडियो भेजिएगा, ठीक है, नेक्स्ट सैटरडे से श्योर पहले। सर। श्योर। ओके सर। और नेक्स्ट के सेशन में वी विल एंड अभी मूवमेंट को मैं आज एक छोटा सा एक्सरसाइज आपको मूवमेंट के लिए देता हूं। मूवमेंट को बॉडी से कैसे क्रिएट करना है, एक हमारे लिए एक प्रॉब्लम है एक्टर के लिए। सपोज एक डांसर है, उनके लिए एक कोडिफाइड मूवमेंट है, गुरुजी बताएंगे कि उनको ऐसे हाथ करना है, ऐसे करना है। अगर हम ऐसे हाथ करेंगे तो इसका मीनिंग ये निकलेगा, और ऐसे अगर हम करेंगे तो ये मीनिंग एक निकलेगा, या फिर ऐसे करेंगे तो एक मीनिंग निकलेगा। वो उनके लिए कोडिफाइड एक्टिंग है, विच वी कॉल्ड हस्ताभिनय इन भरतास नाट्य शास्त्र। सो हियर थिएटर में हम लोग अगर कुछ मूवमेंट करना चाहेंगे, इसको हम दो तरीके से देखते हैं। एक तो ज्योमेट्रिकल मूवमेंट्स, एंड दूसरा ऑर्गेनिक मूवमेंट। ज्योमेट्रिकल मूवमेंट्स मतलब अगर सपोज मैं हाथों के द्वारा कुछ रेखाएं बना रहा हूं, विच आर इन स्ट्रेट लाइंस और विच आर इन डायगोनल लाइंस, दिस इज नोन एज ज्योमेट्रिकल मूवमेंट्स, ओके। अगर उसी हाथ को मैं ऐसे वेव फॉर्म की तरह कर रहा हूं, उसमें कोई
स्ट्रेट लाइंस नहीं बन रहे हैं, इस पे कुछ भी बन सकता है. तो दिस इज कॉल्ड ऑर्गेनिक मूवमेंट. सो you try to do as many as organic movements and geometrical movements with your hands, legs and the entire body. That is one exercise. And दूसरा exercise ये है कि this exercise is known as space writing. Space writing means what? राइटिंग करने के लिए आप क्या करते हैं? लिखने के लिए यू विल यूज पेन और पेंसिल, और समटाइम्स ए पेंटर कैन आल्सो यूज अ ब्रश एंड ऑल दैट. बट नाउ यू आर राइटिंग अल्फाबेट्स. यू आर राइट अक्षरों को अपनी बॉडी के माध्यम से, अपने शरीर के माध्यम से हम कैसे लिखेंगे, और लिखेंगे तो कहाँ लिखेंगे? हवा में लिखेंगे. इसीलिए मैं बोल रहा हूँ इसको स्पेस राइटिंग. सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू स्टैंड हियर, एंड if suppose this is my pen, this both hands are my pen, and मैं एक डायमेंशन को फिक्स करता हूँ. मतलब इतने ही डायमेंशंस में मैं ये बनाने की कोशिश करता हूँ. तो दिस सपोज ए बनाना है तो मैं यहाँ से शुरू करता हूँ. ये अक्षर ए को मैं अपने बॉडी से उसको स्पेस में लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, है ना. ये और इसका आकार ये होगा. ए हम लिखेंगे और अपने दोनों हाथों से, समझे ना. ए लिखेंगे और ये कितना बड़ा होगा? दिस इज ए लाइफ साइज अल्फाबेट. लाइफ साइज अल्फाबेट मतलब आपका हाइट जितना होगा उतना बड़ा वाला ए आप बनाएंगे. ठीक है. तो मैं इसका वीडियो है मेरे पास एक. फॉर एग्जांपल आई हैव ट्राइड टू डू ए वीडियो आउट ऑफ दिस. आई विल सेंड इट टू यू. एंड द रूल इज while drawing this A with your hands, वो कोई लाइफ साइज आपके साइज का है तो आप उसको प्रोनाउंस भी करेंगे. जैसे हम ए लिख रहे हैं तो यू विल शाउट दी वॉट एवर द लेटर यू आर गोइंग टू राइट. ये जब तक ये स्पेस में ये अक्षर बन रहा है तब तक आप उसका प्रोनाउंस भी करेंगे, ताकि आपका वॉइस एक्सरसाइज भी हो जाए, बॉडी एक्सरसाइज हो जाएगा, मूवमेंट एक्सरसाइज हो जाएगा, और आपका वॉइस का भी एक्सरसाइज हो जाएगा. ठीक है. और इसकी वीडियो मैं भेजता हूं. और नेक्स्ट सेशन में इसमें कोई भी बाधा आ रही है, कोई भी इश्यूज आ रहे हैं, हम उसको देखने की कोशिश करेंगे. ठीक है ना. तो 2 एक्सरसाइजेस विच इज ऑर्गेनिक मूवमेंट्स, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, एंड डायगोनल, ट्रायंगुलर, स्क्वायर, जो भी आपके हाथों से पैरों से बन रहे हैं, दे आर जियोमेट्रिकल मूवमेंट्स. So I will try to do a geometrical movement video also and send it to you for your reference. And space rating का तो आज ही मैं भेज दूंगा, तो so that you can understand how best you can do it. Okay. So apart from these, we are going to do many exercises in acting and body and voice and speech. And today I will give you some homework about the poetry reading. You can select the poetry, a very famous poetry from people who are written already, like for example Subhadra Kumari Chauhan, or Maithili Sharan Gupta, or whoever the greatest poets which we are available. And for exercise, please don't take up your own poetries. आप ये भी कह सकते हो सर मैंने भी पोइट्री लिखता हूँ, इसको हम ले लेते हैं. नहीं, ऐसा मत करना, क्योंकि हम खुद की जब लेते हैं तो हम उसमें हमारा एक उसमें एक तरह का प्यार हो जाता है ना. तो अच्छा है कि उसको अवॉइड कीजिए. कोई महान भाव पहले से बहुत सारे अच्छी चीज़ें लिख चुके हैं, उनको लीजिएगा और उनको पढ़ने की कोशिश कीजिए. उनका मीनिंग कितना अच्छा हम उसको बाहर निकाल के दूसरे लोगों को जब हम सुनाएंगे तो किस हद तक हम उसको प्रभावित कर पाएंगे इस तरह की पोइट्री से, ये हमें देखना पड़ेगा. तो आपको सुभद्रा कुमारी चौहानी का एक पोयम याद होगा, ठुकरा दो या प्यार करो. ये आपको नेट पे भी मिल जाएगा. प्लीज टेक अप दैट एंड ट्राई टू read it as many times as possible, and try to record it and try to listen to it first. Okay? Then we will do a small exercise on poetry on Subhadra Kumari Chauhan's ठुकरा दो या प्यार करो. देव तुम्हारे कहीं उपासक कहीं ढंग से आते हैं,
मुक्तामणि बहुमूल्य वस्तुएं लाकर तुम्हें चढ़ाते हैं, इस तरह से कुछ शुरू होता है वो पोइट्री। आप नेट पे आप देखिएगा, उसको मिल जाएगा आपको। उसको प्रैक्टिस कीजिए, उसको रिकॉर्ड कीजिए। अगर अच्छा आपको लग रहा है, आप जब ये सोचेंगे कि इसको दूसरों को भी सुना सकते हैं, दूसरों को सुनाने के लायक ये बन गया है आपका जो बोला हुआ पोइट्री, देन यू मेल टू मी, आई विल just go through it and we'll have a feedback session on the next coming up session. As far as the feedback of the earlier exercises, I have seen only 2 or 3 people's, 2 ही 3 ये लोग भेजे हैं। जैसे मैं एक्सपेक्ट कर रहा था आज बहुत लोग आएंगे जैसे असाइनमेंट्स के बारे में, आप देखिए वी आर ओनली 7 people excluding me. So this shows the interest of the learners, how they are looking at this program. So मेरा भी इंटरेस्ट इतना ही रहेगा। इफ देर आर मोर आर पीपल, मेरे को भी थोड़ा अच्छा लगता है कि ज़्यादा इंटरेक्ट करूं। बट जैसे आप लोगों का इंटरेस्ट घटते जा रहा है, तो मेरा भी शायद लगता है कि इसमें जो टाइम स्पेयर करने में मुझे भी थोड़ा दुख लगता है कि मेरा टाइम तो मेरा उतना ही लगेगा। अगर आप 100 लोग भी हो तो 50 भी हो तो 5 भी हो तो उतना ही टाइम लगेगा। मगर आपका रेस्पॉन्स मुझे थोड़ा आई एम नॉट सेटिस्फाइड, आई एम सॉरी टू से, बट एनी वे आई विल बी हियर। अगर एक बंदा भी इधर सेशन में आता है तो मेरा तो काम बनता है कि मैं उनको कुछ बताऊं। जैसे मैं प्लान करके आता हूं, जैसे मैं होमवर्क करता हूं हर सेशन के लिए कि आज मुझे क्या क्या चीज़ें करनी है, तो मैं उन चीज़ों को तो करता हूं। ठीक है ना। मुझे अच्छा लगता है कि कुछ ज़्यादा लोग जुड़े हम साथ, क्योंकि टाइम तो उतना ही हम स्पेंड करते हैं। तो इससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को या स्टूडेंट्स को उनके साथ साथ मेरे को भी फ़ायदा हो, तो ये मेरी इच्छा है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें इन्वॉल्व हो। तो एनीवे, असाइनमेंट्स के बारे में आप ध्यान दीजिएगा। जो भी मैंने असाइनमेंट भेजा है उनको आप ध्यान से पढ़िए, उसको आंसर कीजिए, और आई विल बी एवेल्युएटिंग देम ऑन और बिफोर 10 दिसंबर। दिसंबर 10 तक आप भेज दीजिए। हाँ लकी, बोलिए, आपने सर हाथ मेरे उठाया। हिसाब से सर आप चैट बॉक्स ओपन कर देंगे तो सर कंसल्ट करके सर सब एक साथ आ सकते हैं सर, काफी लोग ज्वाइन करने के लिए। कौन सा चेक बॉक्स, कौन सा बॉक्स? सर ग्रुप का। हाँ, सर ग्रुप का अपने सर, ग्रुप का? सेशन का क्यों? भी सर, जिससे सर सेशन सब का तो मैं, सबको नहीं, मैं सबसे सर आपसे बात पूछ हो रहा हूँ करके मैं। सर बोल सके कि ये इनके नहीं, पीछे मैं सर नहीं हमारा भी बोलूंगा सर ना ये। कुछ ना कुछ लॉस हो ही जाता है। लकी जी, ये मेरा काम नहीं है। आई टेल यू, नहीं सर मैं हम आपको बोलेंगे सर। नहीं नहीं, आपको बोल रहा हूँ मैं हर सेशन के इंफॉर्मेशन तो दे रहा हूँ ना। सबको पता है कि इतने बजे ये सेशन है, और उनको न्योता दे के बुलाने के लिए, घर में मेरा फंक्शन नहीं हो रहा है, मेरे बच्चे की शादी नहीं हो रही है, एंड जी वी सर। आर द पीपल, वी आवर सेल्फ ऑप्टेड टू ज्वाइन दिस कोर्स, इजंट इट? यस सर। मैं आपको पढ़ाने का जिम्मा लिया, आप इसमें ज्वाइन होकर पढ़ने का जिम्मा लिया है। तो उस ओपन बॉक्स मैंने इसीलिए नहीं खोला कि उसमें हर चीज के लिए गुड नाइट गुड मॉर्निंग वो शुरू हो जाता है, हर छोटे चीजों के लिए मैसेज यस देने सर। लगते हैं। क्योंकि मैंने बहुत सारे ग्रुप्स मैनेज किया है, इसीलिए मेरा एक्सपीरियंस है, इसीलिए मैंने इसको रोक के रखा है। अदरवाइज इसको यू आर ओपन राइट करने सर। में मेरा कोई दिक्कत नहीं है। मैं उसमें ओपन करके बोलूंगा भाई आप लोग काउंसलिंग में आ जाइए, तब भी आएंगे क्या लोग? जिसको आना है वो तो आएगा, जिसको नहीं आना है वो नहीं आएगा। एंड वन मोर थिंग इज दैट, मेरे टीचर भी मुझे बोलते थे कि आई कैन टेक यू टू द वाटर, आई कैन टेक यू टू द वाटर, बट आई कैनॉट मेक यू टू ड्रिंक इट, है ना। मैं आपको पानी तक ले जा सकता हूँ, पानी पीना है नहीं पीना है ये आपका काम है ना। पानी मैं नहीं पिला सकता, मैं आपको बता सकता हूँ कि भैया पानी यहाँ है। अगर आपको जी सर। जरूरत है तो पानी यहाँ है, ये मैं बता सकता हूँ। मैं ये नहीं कर पाऊंगा कि पानी, आपका गला खोल के उसमें पानी नहीं डाल सकता, बिकॉज दिस इज व्हाट आई हैव लर्न फ्रॉम माय टीचर्स। किसको जरूरत है वो आ जाएगा, जिसको नहीं है वो नहीं आएगा। वो बाद में मुझे ब्लेम करेगा कि सर हमें मैटर नहीं मिला, हमें इंटरनेट नहीं चला, हमारा पता नहीं क्योंकि ये वो हो गया है। सबको ग्रुप में मैसेज मिलता है, उस एक बंदे को नहीं मिलता है जो नहीं आ पाता है। तो ये तो मुझे झेलना ही पड़ेगा। मगर मैं ये कह रहा हूँ कि अगर लोग ज़्यादा आते हैं तो मेरा भी इंटरेस्ट बना रहेगा और आपका भी बना रहेगा, क्योंकि ये थिएटर का काम है, ये कोई पेंटिंग या म्यूजिक का काम नहीं है। वो अकेले कहीं दूर बैठ के अपना अपना काम करते हैं, ऐसा नहीं है। ये पीर जी। लर्निंग में होता है। पीर लर्निंग में ग्रुप में जब लोग मिलते हैं तो लर्निंग ज़्यादा होती है,
है ना। तो दैट इज ओनली माई कंटेंशन। ये मत समझना कि सेशंस में लोग कम आएंगे तो मैं नहीं आऊँगा, नहीं, मैं पहले ही आपको बोल रहा हूँ, सेशन में एक भी बंदा होगा तो मैं आऊँगा, मेरा क्लास करूँगा, ये मेरा डिसीजन है और मैं करता रहूँगा, करते आ भी रहा हूँ। ठीक है, आप लोग थोड़ा असाइनमेंट्स के ऊपर ध्यान दीजिए। आज मैंने आपको ये बोला था कि मूवमेंट के बारे में सोचिए, और स्पेस राइटिंग का मैं एक वीडियो दूंगा, वॉइस एंड स्पीच का एक वीडियो दूंगा, उस दोनों वीडियोस को आप ध्यान से देखिएगा, उसको प्रैक्टिस कीजिए। जब हम अगले सेशन में आएंगे फिर उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, इन चीज़ों के अलावा कुछ और पूछना हो तो बताइए आज के लिए। हाँ प्रवीण बोलो। सर होमवर्क सिर्फ एक ही वो पोइट्री रीडिंग का ही भेजना है। पोइट्री रीडिंग का भेजिए और उस एक्सरसाइजेस को प्रैक्टिस कीजिए जो मैंने स्टार्टिंग पॉइंट, मिडिल पॉइंट, एंड पॉइंट का किया है, जी, क्योंकि वीडियोस का मतलब जो एक ही भेजेंगे तो होमवर्क। एक ही होमवर्क का पोइट्री का कीजिए। और सेशु का मैंने बोला ना आपको, सेशु का भी तो जी जी दिया था जी, भाई, वो भी उसको होमवर्क है। प्रैक्टिस कीजिए। हाँ, जी, वो भी डिफरेंट होमवर्क की डिफरेंट तरह मूड है। भेजिए। हाँ, और उसकी जी, ऑडियोस अगर आप रिकॉर्ड कर सकते हैं तो वो भेज दीजिए, एक ही फाइल में भी हो सर सकता वीडियो है। रिकॉर्ड कर देंगे तो सही रहेगा। भाई आप, यही है प्रवीण, वीडियो करेंगे तो उसका फाइल ज्यादा होगा, उसको भेजने में दिक्कत होती है। अच्छा हाँ सर, यू आर राइट। इसीलिए मैं आपको ऑडियो की बोल रहा हूँ, अदरवाइज वीडियो भी भेजेंगे मेरे लिए कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको सेंड करने में दिक्कत होती है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप ऑडियो कर दीजिए, है हाँ ना। सर, आपको जो पहले जो वीडियो भेजे थे वो दोबारा भेजना पड़ा, बड़ा, जल्दी से क्योंकि जाके वो, नहीं हाँ, है। वो गूगल ड्राइव से भेजना पड़ता है, ये पूरा चक्कर हो जाता है। इसलिए बेटर वो वॉइस का एक्शंस का आपने एक्सरसाइजेस को, वीडियो, हाँ, बेटर ये है कि वो आप मिल गया आपको सर? वॉइस के एक्सरसाइजेस होंगे तो उसकी ऑडियो ही भेज दें ताकि आपका भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। ठीक है, या एनीथिंग एल्स, So या can I शैल बी। ask? हाँ प्लीज। या सर, आपने जो वो गूगल फॉर्म जो भेजा था लास्ट में, तो हाँ उसमें एक लिंक है वो खुल रही थी, दैट हाँ, आई हैव ऑलमोस्ट डन, ओनली आई हैव टू सबमिट, दैट्स इट। सो व्हाट आई हैव टू डू नाउ? दैट्स व्हाट आई हैव वापस से टोल्ड वो यू। तीन। नहीं नहीं प्रीति जी, हम्म। वापस में वो 3 को कीजिए, क्योंकि गूगल ड्राइव का कुछ लोग करेंगे, कुछ लोग नहीं करेंगे, तो फिर वो डाटा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि उसमें से एक ही ओके। लिंक खुल रही है, बाकी लिंक्स नहीं खुल रहे हैं। तो कौन किसको क्या आप कर रहा है मुझे पता नहीं हो जाएगा, इसलिए आई एम रिक्वेस्टिंग यू टू डू दिस पीडीएफ फॉर्मेट का भी कर दीजिए और उसको स्कैन करके भेज दीजिए मुझे। एंड सर, कैन वी लाइक इंस्टेड ऑफ राइटिंग विथ हैंड, कैन वी टाइप इट आउट? इज इट ओके, या फिर हमें हैंड राइटिंग से ही करना पड़ेगा? नहीं, अगर आपको उतना टाइम है तो टाइप भी कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। टाइप इट ऑन द पेपर, टेक ए प्रिंट आउट एंड स्कैन देम एंड सेंड इट, देयर इज नो इशू। ओके 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 सर, थैंक यू। हाँ, थैंक यू। यू डू इट। हैंड राइटिंग का मतलब यही हुआ कि हमको पता लग जाए कि आपने खुद किया है ना। टाइप राइटिंग में यस सर। एनीथिंग कैन हैपन, ओके। anything can happen. I'm just saying that you may not be doing it, somebody else, अरे भाई ये थोड़ा यहाँ से यहाँ तक टाइप कर देना, सर को भेज देंगे, काम हो जाएगा। चिल्लाते रहता Okay. है असाइनमेंट Okay, got असाइनमेंट it, sir. करते हुए। यू So गॉट इट माय पॉइंट। that is the evidence. Like we have done it. That is only a contention that Yeah. if with your own handwriting, if you are writing it, you will Hmm. have a confidence about the subject which you have written, उसको थोड़ा आपको ज्यादा याद होगा। टाइप रिटन से भी मेरे लिए कोई दिक्कत नहीं है कि कुछ हो सकता है कि Okay. हाँ भाई यहाँ से आप टाइप करके फिर उसको स्कैन कर दो और सर को भेज दो, हो गया। आपका इन्वॉल्वमेंट भी नहीं रहेगा। आई एम नॉट सेइंग दैट एवरी पर्सन विल डू दैट, बट इट Hmm. इज बेटर इफ यू आर नॉट हैविंग टाइम, यू कैन टाइप राइटिंग में भी मेरे कोई लिए दिक्कत नहीं है, टेक अ प्रिंट आउट एंड सेंड इट, Okay. दैट्स नॉट Okay. एन Okay, इशू। sir. Okay, but it Yeah. should Yeah. have Got it. your name and enrollment number, नेम एंड Yes. एनरोलमेंट नंबर हर एपिसोड, हर असाइनमेंट में आपका होना चाहिए, ताकि हमें रिकॉग्नाइज हो कि आपका ये असाइनमेंट है। ठीक है, Okay. Okay. Got it. Got it. एंड यू कैन राइट इट इन हिंदी ऑल्सो, हिंदी और इंग्लिश, नो प्रॉब्लम, हाँ जी, not हाँ any जी, हाँ जी. not any other language. Okay, Hmm. because I am Hmm. not familiar with the other all languages. Okay, Language. Yeah. Sure. Sure, sir. Sure. sure, thank you very much, thank you for the session, and hope to see you all in the next session next Saturday. Okay, thank you, good day.